Hello friends, welcome to our channel that is for computer students. So today we will see in array that what is multi-dimensional array and what is two-dimensional array. So array means define a contiguous area in the memory location. So what is multi-dimensional array? An array in which data are arranged in the form of arrays is called multi-dimensional array. That is called array of arrays. Remember that आ सकता है आपका objective what which array is called array of arrays. That is multi-dimensional array. An array can have much dimension as required. However, two-dimensional and three-dimensional are commonly used. Syntax है data type सबसे पहले, फिर array का नाम and within square bracket you have to define the size. Here array name is an array of type, data type, and it has n dimensional. The number of element in a multi-dimensional array is equal to the product of size of all dimensional. Total number of element in the array name is जो D1, D2, D2 और जितना तक जाएंगे जो आप स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे सबका मल्टीप्लिकेशन जो होगा दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट. जैसे सिंगल डायमेंशनल एरे में क्लियर था कि इतना आप डाल रहे 5 तो नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी 0 to 4 वो 5 हो जाता. और इस मल्टी डायमेंशनल एरे में आप जितना एरे डालेंगे उसका मल्टीप्लाई जो होगा दैट विल बी द एलिमेंट. So array with two-dimensional or subscript often represent table of value consisting of information arranged in rows and columns. जो multi-dimensional में data store होता है वो arrange होता है rows and columns में. The first identifier the elements row and the second identifier is elements column. तो first वाला होता है वो row को denote करता है और second वाला column को. Array that require two subscripts to identify a particular element are called two-dimensional or two array. जिसमें आप दो subscript define करेंगे that is one is for row another one is column that is 2D array. So array with two or more dimensional are known as multi-dimensional. मतलब दो वाले को भी multi करते हैं और दो से ज्यादा वाले को भी multi-dimensional करते हैं. Now we'll see two-dimensional array. Two-dimensional elements are arranged in row and column format. When we are working with two-dimensional array, we have required to refer to subscript operator which indicates row and column size. The main memory of two-dimensional array is rows and sub-memory is column. So first one जो memory वो होगा row और दूसरा वाला होगा जो column होगा. So in 2D array, when we are referring one subscript operator, then if we gives row address, two subscript operator will give the element. On 2D array, array name always gives the main memory that first row base address and array name will give the next base address नेक्स्ट रो बेस एड्रेस. तो एरे का जो मेन मेमोरी है वो एरे का नाम से ही डिनोट हो जाता है. सी ये हो गया आपका रो और ये हो गया आपका कॉलम. तो जो एंट्री होता है पहले जो भी एलिमेंट आप एंट्री करेंगे वो इस वे में होगा 0 0 फिर 0 1 मतलब 0 रो कॉलम 1 0 रो कॉलम 2 0 रो कॉलम 3 और फिर नेक्स्ट फिर आएगा रो 1 कॉलम 0 रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2 रो 1 कॉलम 3. इस तरह से ऐसे एक एलिमेंट का एंट्री होता है. सो रो फर्स्ट वाला जो होगा वो रो इंडेक्स होगा और सेकेंड वाला जो होगा कॉलम इंडेक्स होगा. जब आप इसको देखेंगे कि किस तरह से जो दो स्क्वायर बॉक्स में दिया हुआ फर्स्ट वन जो होगा डिनोट्स करेगा रो को और सेकेंड वन करेगा कॉलम को. और एंट्री इस तरह से होता है फर्स्ट रो का सारा एंट्री हो जाएगा कॉलम में देन इट विल मूव टू द सेकेंड रो. Now see the syntax type array name number of rows पहला स्क्वायर ब्रैकेट में number of columns सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट में. Example integer type है data type x is the name of array 3 is the number of row and 4 is the number of column. So in this example x is two-dimensional array. This array holds 12 elements होगा 3 into 4 ये मल्टीप्लाई करेगा तो आपसे 12 नंबर मांगेगा. So you can think this array table will be 3 rows and each rows has 4 columns.
देखिए पहला कॉलम 0 0, फिर 0 1 0 2 0 3, फिर 2 में आएगा 1 0 1 1 1 2 1 3, फिर थर्ड में आएगा 2 0 2 1 2 2 2 3। तो इस तरह से 2D एरे में एंट्री होगा। Number of subscript variable required is 2, declaration x 3 4, number of rows 3, number of columns 4, number of cells 12, number of for loop required to iterate is 2. This is what we have done. So array size of the array must be unsigned integer value which is greater than 0 only. In the declaration of array size must be required to mention. If the size not mentioned then compiler gives that error. So आपको array का size define करना जरूरी है। int arr स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से blank छोड़ दीजिएगा तो compiler इसको नहीं रीड करेगा, it will give an error. So किस तरह से डिक्लेयर करते हैं? इंटीजर आपको अगर 100 का लेना है तो 10 इंटू 10 इक्वल टू 100, इंट a 10 10। फिर डिक्लेयर फ्लोट एरे विद द 50 एलिमेंट 5 10। डिक्लेयर कैरेक्टर एरे विद 250 एलिमेंट 5 50, एरे का नाम एंड डेटा टाइप char. So when we initialize a 2D array is more than array arr 2 3, इस तरह से प्री डिफाइन अरे आप विद इन कर्ली ब्रेसेस और हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा लगा के आप प्री डिफाइन अरे डिक्लेयर कर सकते हैं। बेटर वे टू इनिशियलाइज दिस अरे विद द सेम अरे एलिमेंट एज अबव 2 3, इस तरह से कर सकते हैं। 2 रोज ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से, अगर आप ऐसे कीजिएगा तो भी लेगा, लेकिन अगर इस तरह से आप डिफाइन करेगा तो ये आपके लिए कन्वीनियंट होगा कि एरे 2 है तो ये 2 रोज हो गया और कॉलम 3 है तो 3 कॉलम्स हो गया, 2 4 5, फिर कर्ली ब्रेसेस बंद, 9 0 0, कर्ली ब्रेसेस बंद, और ये एक ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, एक क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस और लास्ट में सेमीकोलन। सो सी इनिशियलाइज करने के लिए टेस्ट नेम ऑफ द एरे 2 2, फिर इन टेस्ट 10 10, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज द example how we initialize the 2D array. See, initialize all the elements initialized to 0, 0 के 0 पोजीशन में 1, 0 के 1 पोजीशन में 2 और सारे अदर जो है वो 0, इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। See, int a, देखिए कभी भी आप 2D array डिफाइन करेंगे तो फर्स्ट वाले को ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से आप इनिशियलाइज कर दिए हैं बट ये एरर है। दिस इज अ वैलिड डिक्लेरेशन, ये साइज डिफाइन कर दिया गया है लास्ट में 2 2, तो ये वैलिड है। दिस इज इनवैलिड डिक्लेरेशन, ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। अगर आप एलिमेंट एंट्री कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले को ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। दिस इज इनवैलिड 3 रोज एंड यहाँ पर कितना कॉलम है नहीं पता है। लास्ट दिस इज इनवैलिड, यहाँ पर साइज नहीं डिफाइन किया गया है एंड दिस इज वैलिड डिक्लेरेशन। So to access the element of 2D array we need a pair of index, one for row position and one for the column position। इस तरह से डेटा टाइप array का नाम row and column। तो C out A 1 2, A 1 2 में 13, C in A 1 2। Now we will see some more examples. Display all elements of an initialize of 2D array. Name of the array is test, data type is int, 3 2, 3 rows and 2 columns। तो 3 rows में पहला 2,
-5 4 0 9 1 कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्री डिफाइन है। नाउ 2D अरे में हम लोग नेस्टेड फॉर लूप का यूज करते हैं। वन इज फॉर रो, अनदर वन इज फॉर कॉलम। तो कॉलम जब भी शुरू होगा वो 0 से शुरू होगा, इसलिए उसको इनर लूप में रखते हैं। और आउटर लूप में आपका रोज है, तो कि एक बार इनिशियलाइज होता है और आगे बढ़ता जाता है। तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, 0 से शुरू हुआ, लेस देन 3 है, जे 0, फिर ये 2 लेस देन 2 है तो जे को डिस्प्ले करेगा, और टेक्स्ट और ये आई और स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे डबल कोटेशन में, और उसके बाद लिखेंगे जे। तो इस तरह से ये डिस्प्ले करता जाएगा। ये इस तरह से आपका डिस्प्ले करेगा। टेस्ट 002, टेस्ट 01 -5, दिस 104, टेस्ट 110, 209 और ये 211। तो जो एलिमेंट आप एंट्री किए थे वो इस तरह से डिस्प्ले करेगा। Next is program is for matrix. 2D array of 2 rows and 3 columns. Fill the values from the user to display them 2 rows and 3 columns. 2 rows and 3 columns. 2 rows and 3 columns मतलब 6. 2 into 3. तो 2 rows and 2 rows and 3 columns. The first is outer loop, the second one is this. After second outer loop, this. So mat is the name of array 2 or 3 ij. So enter the matrix element row wise. I equal to 0, I less than 2, I plus plus, j equal to 0, j less than 3, j plus plus. mat ij और सी इन करेंगे पहला रो पहला कॉलम। इस तरह से सी इन का ये प्रोग्राम है। देखिए, तो ये पहला रो और पहला कॉलम एंट्री करेगा, फिर ये लूप में रहेगा तो दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में। लूप पहला ही, आउटर लूप पहला रो रहेगा। फिर ये आई प्लस प्लस होगा तो लूप चेंज होगा, रो सेकंड आ जाएगा, तो ये फिर इनर लूप रो वाइज शुरू करेगा 0 1 2। तो इट विल आस्क यू टू एंटर 6 एलिमेंट। नाउ डिस्प्ले करने के लिए फिर एक लूप चलाएंगे। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस, फिर मैट आई जे, और उसके बाद उसको डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग। मैट ऑफ आई जे पहला रो को डिस्प्ले करेंगे इस लूप से, फिर आई प्लस प्लस होगा तो दूसरा रो शुरू होगा। सही है। 006, 013, 028, 019, 114, 127 इस तरह से डिस्प्ले करेगा। ये आप डिस्प्ले कर सकते हैं। See, this is the very interesting program. पहले रो में आपको एंट्री करना है। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस, ये 3 दिया हुआ है कॉलम के लिए, तो ये 3 लेस देन 3 होगा। सी इन आई और जे इस तरह से कर देंगे तो वो पहला रो को कंप्लीट करके फिर सारे कॉलम में एंट्री करके दूसरे रो में आएगा, उसके सारे कॉलम को एंट्री करेगा। और ये इट विल आस्क यू टू एंटर 6 एलिमेंट बिकॉज 2 into 3, 2 rows and 3 columns। और सेम डिस्प्ले करने के लिए भी आपको इस तरह से डिस्प्ले होगा आई जे, ये आपको डिस्प्ले करेगा। सीधा आउटपुट। Creates a matrix of user desired, fill value with user as matrix form and display then 2 rows and 3 columns. So this is the array rows column size, इंटर रो और कॉलम। ये अब ये आप यूजर से मांगेंगे कि रो और कॉलम इंटर कीजिए, तो i इज लेस देन रो और j इज लेस देन कॉलम, ARR ऑफ आई जे ये एंट्री हो जाएगा यूजर्स चॉइस पर। आप जो भी नंबर देंगे वो आपका रो और कॉलम दो आपसे मांगेगा, सी इन रो एंड कॉलम, उसके बाद एंट्री होगा। और डिस्प्ले करने के लिए भी सेम, आई लेस देन रो, जे लेस देन कॉलम और ARR ऑफ आई जे इस तरह से आप डिस्प्ले करेंगे। तो आप इंटर किए 2 2, फिर उस 2 रो 2 कॉलम, इट विल आस्क यू टू इंटर एलिमेंट्स, तो 4 एलिमेंट मांगेगा 2 into 2, तो आप 4 इंटर दिए, नंबर किए 1 2 3 4, तो इस तरह से ये डिस्प्ले करेगा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम।
That's all from today video. Thank you. Bye bye.